اللہ، یہ جگہ بند ہے، میں قبر کے اندر ہوں؟ نہ، نہیں، میں زندہ ہوں، مجھے کسی نے زندہ دفن کیا ہے، کوئی ہے، مجھے یہ کیا چیز ہے؟ فون، صحیح، چل جا، اللہ کے لیے چل جا۔ ناظر کا نمبر، جلدی اٹھا لو، پلیز اٹھا لو، ناظر اٹھا لو۔ یہ آواز نہیں، یہ کیا؟ کوئی مدد کرو، ناظر! السلام علیکم ناظرین، آج کا یہ واقعہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، اس لیے گزارش ہے کہ واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نذیر نامی شخص کا یہ واقعہ، آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میری شادی کو ابھی 9 مہینے ہی ہوئے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کے مرنے کی دردناک خبر ملی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جس سے ابھی کھل کر میں اظہار محبت بھی نہ کر سکتا تھا، وہ اس دنیا سے اتنی جلدی چلی جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا، پر زندگی نے میرے اوپر اتنا بڑا ستم کر دیا کہ میری بیوی بھری جوانی میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن بیوی کے مرنے کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہوئی، جس نے مجھے نہ صرف جھنجھوڑ کے رکھ دیا بلکہ بہت سارے رشتوں کی پہچان کروا دی۔ جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر پھیلی تو بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ اس کی ماں مجھے لان تان کرنے لگی، کہنے لگی کہ تو نے ہماری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کرتے ہوئے تو بہت خوش تھی، اس نے تو ہم سے کہا تھا کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ تو نے سچ میں ہی اس کا گھر سے جنازہ نکال دیا۔ کیا تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تو نے میری بیٹی پر اتنے ظلم کیے ہوں گے، اس لیے وہ بیچاری بولی ہی نہیں اور گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ اب میں ان کو کیا سمجھاتا کہ میں تو اپنی بیوی سے ابھی تک کوئی تعلق قائم ہی نہیں کر سکا تھا، تو میں اس پر ظلم کیا کرتا؟ ابھی تو ہم دونوں کا رشتہ بھی بہت ہی زیادہ تکلف والا تھا، میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اس قدر شرماتی لجاتی تھی کہ میں اس سے بات کرتا تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ خیر، اس سارے چوہے بلی کے کھیل میں 3 مہینے گزر گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے کر جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے بولے اب وہ ہماری ذمہ داری تھی، اس لیے اسے دفنایا بھی یہیں پر جائے گا۔ لیکن بیوی کے میکے والوں میں سے ایک آدمی بہت زیادہ ضد کر رہا تھا کہ کسی صورت میں بھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے اس پر جتنے جی بھر کر ظلم کر لیے وہ کافی ہے، ہم اسے مر کر یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے میت کو یہاں سے نکال لیا اور یہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن میری اس کے ساتھ نسبت ختم تو ہونے والی نہیں تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت پریشان تھا۔ میں نے جب اسے لحد میں اتارا تو میرا جسم کانپ رہا تھا، مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی۔ دل چاہا بیوی کے ساتھ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے پر بہت زیادہ ضد کی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، ارے بھائی، اب کیا تم بھی اس قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب اور نفرت والا لگ رہا تھا۔ میں قبر سے ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور تم میاں اب کیا اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی زہریلی باتیں سن کر بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا؟ یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میرا دل بری طرح سے رو رہا تھا۔ ابھی میں کسی دوست کو فون کرنے لگا، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا
मेरा तो मोबाइल जेब में नहीं था। ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुआ। सोचा कि शायद मोबाइल मैं कहीं रास्ते में फेंक आया हूं। फिर मुझे याद आया कि कब्रिस्तान से आते हुए मेरी जेब जरा हल्की थी। मैं उस वक्त इतना फर्क महसूस नहीं कर सकता था। लेकिन बात दरअसल ये थी कि मैं अपना मोबाइल कब्रिस्तान में ही कहीं भूला आया था। मैं फौरन घर से निकला। मोबाइल के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल लग रही थी। ये सब तो आप भी जानते ही होंगे। मैं फौरन उसी कब्रिस्तान में पहुंचा जहां पर मेरी बीवी की तदफीन हुई थी। वहां पहुंचते ही मेरी नजर पूरे कब्रिस्तान पर पड़ी, लेकिन मेरा मोबाइल कहीं नजर नहीं आया। मैं इधर उधर देखता, तभी एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आया और बोला, क्या ढूंढ रहे हो? शायद वो बूढ़ा आदमी इस कब्रिस्तान का गोरकान था। मैं बोला, बस चाचा, मैं अपना मोबाइल यहाँ भूल गया हूँ, वो ढूंढ रहा हूँ। कहीं तुम अपना मोबाइल कब्र में तो नहीं गिराए? चाचा ने बड़ी हैरानी से पूछा। हाँ, ये भी हो सकता है। असल में जब मैं कब्र में देख रहा था तो मुझे किसी ने कब्र से हटाने के लिए कमीज से पकड़कर खींचा था। लगता है कि मेरा मोबाइल नीचे ही गिर गया है। ये बात सुनकर मैं लरज़ गया। तो क्या मेरा मोबाइल इस कब्र में है? लगता है कि अब मुझे कब्र खोदनी पड़ेगी। तौबा करो मियाँ, कैसी बातें करते हो? वो आदमी अपने कानों को हाथ लगाने लगा। एक चंद हजार के मोबाइल के लिए तुम अल्लाह का इतना बड़ा कानून तोड़ोगे? कब्र अल्लाह की हद होती है। तुम्हारी बीवी के सारे मैके वाले, घर वाले उठकर आ जाएंगे। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसी बात तो हरगिज मत करना। वो यही सोचेंगे कि तुमने ही इनकी बेटी को मारा है। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गया कि इस आदमी को मेरे घरेलू मसाइल के बारे में कैसे पता था। ये एक गोरकन था। फिर इसको ये भी पता था कि ये मेरी बीवी है और उसके घर वाले मुझसे नाराज हैं, और ये तो मेरी बीवी के मैके का कब्रिस्तान है। शहर में उमूमन ऐसी तफसीलात बताई जाती है, ना ही कोई दूसरे के खानदान के बारे में जानता है, पर यह गोरकन अजीब था जिसे हर तरह की मालूमात थी। मैं बड़ा हैरान हुआ लेकिन चुप था। उस वक्त गम ही इतना था कि मैं फौरन अपने घर लौट आया। घर आकर मैंने ये बात अपनी अम्मा को बताई। अम्मा कहने लगी, अरे बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम ऐसा करो कि दूसरा मोबाइल ले लो। ख्वामा परेशान होते हो। अब अगर बीवी की वफात के बाद तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं होगा तो तुम्हारा दिल और भी ज्यादा परेशान होगा। अपना ध्यान हटाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम जाकर अपने लिए नया फोन खरीद लो। मैंने कहा, अम्मा, उस नंबर पर तो मेरे काफी सारे जानने वाले थे, लेकिन चलो आप कहती हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। आप मुझे पैसे दे दे। माँ ने मुझे पैसे दे दिए तो मैं अपना नया मोबाइल खरीद लिया। मैंने उस मोबाइल में नई सिम डाली, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मुझे मजीद परेशानी में डाल दिया। रात के 12 बजे थे। मेरे फोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। अचानक से सिग्नल आए तो मैंने पहला नंबर जो मिलाया वो अपना पुराना नंबर था। शायद मैं सिग्नल चेक करने के लिए ऐसा कर रहा था। मेरा ख्याल था कि बस मेरा मोबाइल कब्र में गिर गया है तो अब वो खत्म हो गया होगा। लेकिन जैसे ही मैंने फोन में नंबर मिलाया तो उस पर बेल जाने लगी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अजीब सा डर लगने लगा। मेरा मोबाइल कब्र में है और वहां उस पर बेल जा रही है। लेकिन अगले लम्हे जो हुआ उसने तो मुझे हैरान करके रख दिया। मेरा फोन उठा लिया गया था और फिर जो हुआ उसको देखकर मैं इस कदर हैरान और परेशान और तजस्सुस में मुब्तला हुआ कि फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। माँ भी हैरान थी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, अम्मा, मैं अपनी बीवी की कब्र पर जा रहा हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पहले मोबाइल का बहाना बनाकर गए थे, अब कौन सी आफत आ गई है? रात के इस वक्त तुम अपनी बीवी की कब्र पर जा रहे हो। अम्मा, मुझे जाना होगा। ये कहकर मैं तो घर से निकल गया। मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ मेरे पीछे कितना परेशान हुई होगी। अभी मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था और वो था मेरी बीवी का ख्याल, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था उसके बाद मैं खामोश तो नहीं बैठ सकता था। मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इस मामले की जाकर तहकीक करूं। इसलिए मैं अपनी बीवी के आबाई कब्रिस्तान पहुंच गया था। मगर जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो वही गोरकन मुझे मिला। अरे मियाँ, तुम यहाँ बार बार क्या ढूंढने आते हो? मुझे देखकर वो गुस्से से बोला, गोरकन मियाँ, आपका काम है कब्र खोदना, आप उस तक रहे। आप मुझसे बार बार सवाल क्यों करते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? लेकिन मियाँ,
मैं तो तुमसे हमदर्दी की वजह से पूछ रहा हूँ। तुम्हें इस कब्रिस्तान का नहीं पता। मैं यहाँ का गोरकन हूँ तो मैं ही जिम्मेदारी उठाऊंगा ना। इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं हल कर देता हूँ। मैंने गोरकन को भी सारी बात बता दी। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक रंग आया और एक गुजर गया। अच्छा, मैं इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इसका ताल्लुक तुम्हारी बीवी से है, तुम्हारी बीवी की कब्र से नहीं। और तुम अपनी बीवी के घर वालों से जाकर इस बात का पता मालूम करो, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं कुछ बोलूंगा तो वो खयानत हो जाएगी, इसलिए मैं खुद को गुनाहगार नहीं करना चाहता। तुम खुद जाकर मालूम करो। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। मैं गोरकन की बात सुनकर समझ गया कि वो मुझे कोई बात नहीं बताना चाहता। शायद कि उसने मेरी बीवी के घर वालों से कोई रकम वसूल की होगी या कोई और वजह होगी, जिसकी वजह से वो पूरी बात मुझे नहीं बता पा रहा था। मैं अपनी बीवी के कब्रिस्तान से होकर उसके घर पहुंच गया, लेकिन मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बल्कि यूं ही घर में दाखिल हो गया। मैंने देखा वो सब लोग एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। घर का बाहर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली था, वहां कोई भी नहीं था। इसलिए मैं चलता हुआ उस कमरे के करीब पहुंच गया जहां बैठकर वो लोग बातें कर रहे थे। मैंने देखा उन सब के चेहरों पर बेपनाह गुस्सा था। लगता था जैसे कि वो अभी उठकर मुझे मारना शुरू कर देंगे। वो बात कर रहे थे मेरी बीवी के बारे में। वो मेरी बीवी पर गुस्सा क्यों कर रहे थे? तभी मेरा हाथ एक प्याली पर लगा। वो प्याली गिरकर टूट गई तो सब लोगों की तवज्जो मेरी तरफ आ गई। वो लोग मुझे यूं देखने लगे जैसे मैंने इस घर में चोरी कर ली हो। बेटा, तुम यहाँ कैसे आए हो और कब आए थे? मेरी सास ने मुझसे पूछा। अम्मा जी, मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ। मैंने अपनी सास की तरफ उम्मीद भरी नजर डाली। हाँ बेटा, आओ, हमें तुम्हारा इंतजार था। मेरा इंतजार? मगर वो क्यों? मैंने अपनी सास से पूछा। बस बेटा, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि क्या करें। तुम्हें तो पता है कि हम एक मामूली से खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मेरा भांजा कल से घर नहीं आया। वो ऐसा गायब हुआ है कि मेरी बहन भी परेशान हो गई है। कहती है कि अपने दामाद से कहकर मेरे भांजे को ढूंढ कर लाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरा एक ही जवान बेटा था, अगर वो भी न रहा तो मैं क्या करूंगी? तुम जानते हो ना कि कई अरसे से हमारी उनके साथ नाराजगी चल रही थी, लेकिन अब इस मौके पर हम दोनों खानदान एक दूसरे के बेहद करीब हो गए हैं। मैं ये सुनकर अपना गम भूल गया। अच्छा माँ जी, मैं आपका काम करवा दूंगा, लेकिन आपको अपना मसला बताने आया हूँ। बेटा, मसले तो चलते रहते हैं। मेरी सास ने मेरी बात को काटते हुए कहा, लेकिन तुम पहले मेरा काम कर दो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मैंने अपनी सास से बहस करना मुनासिब नहीं समझा। वहां से एक और जिम्मेदारी लेकर वापस अपने घर आ गया था। मैं अपनी बीवी की कब्र खोलना चाहता था, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था और जानता था, उसके बाद मेरा दिल बहुत अजीब सा हो गया था। मैं चाहता था कि मैं अपनी बीवी की कब्र खोलूं, कब्र कुशाई करूं, लेकिन कोई भी मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। ना कोई मेरी बात पर यकीन कर रहा था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि जो कुछ करूंगा मैं खुद ही करूंगा। रात के 2 बजे मैंने कब्रिस्तान में जाने का फैसला कर लिया। अब मुझे अपनी बीवी की कब्र खोलना बहुत जरूरी लग रहा था। 2 बजे घर के सब लोग सो रहे थे। मैं जानता था कि वो गोरकान जो बार बार मुझे मना कर रहा था, वो भी इस वक्त नहीं जाग रहा होगा। उसको तो लगता होगा कि अब मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, पर मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था। इतनी बड़ी बात हो गई थी, मैं कैसे खामोश रहता। मैंने जाकर सारा इंतजाम मुकम्मल किया और तकरीबन 2:30 बजे कब्र खोलना शुरू कर दी। मुझे इस बात की हैरत नहीं हुई थी कि कब्र की मिट्टी काफी नरम थी। ऐसे लगता था जैसे कब्र को कुछ देर पहले ही बंद किया गया हो। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई तो पत्थर की स्लेटे को हटाने में मुझे 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैं उस वक्त इतने जोश और वलवले में था कि मैं बड़े से बड़ा पहाड़ भी उखाड़ सकता था। जब मैंने पत्थर की स्लेटें हटाई तो मुझे एक और खैरत का झटका लगा। सामने का मंजर देखकर मेरे पसीने छूट गए थे। ठंडे पसीने मेरे चेहरे पर आ रहे थे और मैं इस कदर परेशान था
कि समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि सामने कब्र खाली थी। कब्र में ना मेरी बीवी थी ना उसका कफन था। मैं तो अपना फोन ढूंढने आया था, पर एक नया किस्सा खुल गया था। दरअसल जब मैंने अपना फोन कान से लगाया तो किसी ने मेरी कॉल उठाई थी। इस बात से मुझे लगा जैसे मेरा फोन कब्र में नहीं रह, बल्कि मेरा फोन कोई चोरी करके ले गया है। लेकिन जब मैंने अगली बात सुनी तो वहां से मेरा तजस्सुस कायम हो गया। कुछ देर हवाओं की जक्कड़ की ऐसी आवाज आती रही और फिर मेरे कानों में एक आवाज पड़ी कि मेरी बीवी सख्त अजाब में है और जब तक उसके नाम का कर्ज अदा नहीं कर दिया जाता तब तक वो यूं ही तड़पती ही रहेगी। शायद मैं यह बात सुनकर बेवकूफ बन ही जाता, लेकिन मैं सोचने लगा कि कब्र में आने वाले फरिश्ते तो कभी भी उर्दू जबान में बात नहीं कर सकते। वो तो सुना है कि अरबी में बात करते हैं, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फरिश्ते की आवाज मुझे फोन पर सुनाई दे। ये चीज कोई ड्रामा या फिर झूठ लगती थी। ऐसा हकीकत में हो ही नहीं सकता था। बहुत सारे लोगों ने कब्र में कैमरा और माइक रखने की कोशिश की, पर आज तक किसी फरिश्ते की आवाज किसी इंसान के कानों में नहीं पड़ सकी। यह अल्लाह का राज है और ये अल्लाह ही जानता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी फरिश्ते की आवाज कोई इंसान सुन सके। बस तभी से मुझे शक पड़ गया था और मैंने बीवी की कब्र खोदने की ठान ली थी। फिर जब मैंने कब्र खोदी वहां पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं अपनी बीवी के घर वालों के पास चला गया। मैंने आपकी बेटी की कब्र खोद दी है, पर मेरी बीवी वहां नहीं है। मेरे ससुराल वाले मुझ पर गुस्सा करने लगे कि मुझे ये बेहुरमती करने को किसने कहा था। मेरी बीवी के भाई तो बकायदा मुझे मारने पर तुले थे। वो इस कदर ऊंची आवाज में बात कर रहे थे कि मैं अब उनसे डर रहा था। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं तो कभी भी अपनी बीवी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकता था, और ये बात उन लोगों को कौन समझाए। उनको तो मैं ना जाने कसाई, जालिम और जल्लाद लग रहा था। मैंने अपनी बीवी के घर वालों से ज्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो तो लड़ने झगड़ने पर, मर मिटने पर तैयार हो गए थे, और ऐसे लोगों से मैं कितनी भी बात करता वो मेरी बात ना सुनते। वहां से निकला तो सबसे पहले मुझे अपनी सास के भांजे का ख्याल आया, जिसके बारे में उन्होंने मुझे ढूंढने का कहा था। बाकी सब काम छोड़कर अब मैं भी उसी को ढूंढना चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी बीवी के उस कजिन पर बहुत ज्यादा शक था। वो भी घर से उस दिन से गायब हुआ था जिस दिन से मेरी बीवी फौत हुई थी। शहर में पूछता पाछता वहां के इकलौते बस अड्डे पर पहुंचा। वहां जाकर मैंने अपनी सास के भांजे के बारे में बताया। मुझे वहां कहीं एक लोकल आदमी ने ये मालूमात दी कि वो सुबह सुबह ही दस्का के लिए निकला है। ये बात मेरे लिए ज्यादा हैरानकुन नहीं थी। मैं उसका पता ढूंढते ढूंढते उस तक कैसे पहुंचा ये एक अलग कहानी है, पर वो एक छोटी सी तंग गली में किराए के मकान पर रहता था, और आज उसे ढूंढते हुए मुझे 1 हफ्ता हो चुका था। हफ्ते के बाद जब मैं उस तंग गली में उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगा तो मेरे दिल में तमाम सवालों के जवाब पहले से मौजूद थे, और कुछ सवाल मेरे जहन में उठ भी रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला मैंने देखा कि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बीवी खड़ी थी। मैं तो किसी और को ढूंढने यहाँ आया था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक रंग आए और एक रंग जाए। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पीछे भागने लगी। मैंने बाजू से पकड़ा और घसीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाने लगी और शायद मुझे गली वालों के सामने एक मवाली जाहिर करना चाहती थी। मैंने सबको चुप करवा दिया कि ये मेरी बीवी है और मैं इसे ऐसे यहाँ छोड़ नहीं सकता। सब लोग बहुत हैरान थे। मेरी बीवी के चेहरे पर भी बहुत पशेमानी थी। मैंने उसे लाकर गाड़ी में फेंका और उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम तो मर गई थी। वो रोने लगी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, खुदा का नाम मत लो। तुमने तो उसको नाराज करके ये रास्ता इख्तियार किया है। अब बताओ कि तुम्हें क्या सजा दूं? मेरी बीवी मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी कि पहले एक बार आप मेरी बात सुन लें, फिर आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी। अगर तब भी आपको यकीन ना आए तो आप जो कहेंगे
मैं वही करूंगी। मेरी बीवी ने जब अपनी कहानी सुनाना शुरू की तो मैं चुप हो गया। अब मैं उसे क्या कहता, क्या सजा देता। उसने बताया कि वो जब से बड़ी हुई है उसके घर में उसके खानदान वालों का आना जाना लगा रहता था। उसका एक कजन था जो कि उसकी खाला का बेटा था, अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। एक दिन मेरे कजिन ने मुझसे कहा वो इसे मॉडलिंग करवाने के लिए दूसरे शहर ले जाएगा। वो खूब पैसे कमाएगी, मशहूर हो जाएगी और घर की गुर्बत खत्म कर देगी। वो भी उसकी बातों में आ गई, फिर उसके साथ चल पड़ी। उसने मुझे शहर ले जाकर अपनी हवस का निशाना बनाया और साथ ही उसकी तस्वीर भी बनाई। जब मेरी इतनी सारी तस्वीर बन गई तो मैं मजबूर हो गई और उसकी बात मानने लगी थी। ये बात उसकी माँ को पता चली तो माँ ने उसकी शादी मुझसे कर दी। पर उस भांजी ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने सख्ती से मना कर रखा था कि अपने शौहर के पास नहीं जाना। अभी मेरी बीवी 2 हिस्सों में बट चुकी थी। वो उस शख्स की बातें भी मानती और मेरे घर में खुशी खुशी रहती भी थी। वो अपना गम किसी पर जाहिर नहीं होने देती थी। फिर एक दिन उसके खालाजाद ने एक अनोखी फरमाइश कर दी कि तुम मरने का नाटक करो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। उस बेवकूफ को ये भी नहीं पता चला कि एक शख्स के निकाह में होते हुए दूसरा निकाह नहीं हो सकता। मेरी बीवी ने उसके कहने के मुताबिक नाटक किया। खुदा जाने उसने इतनी कामयाबी के साथ ये सब कैसे कर लिया। जब मेरी बीवी के मरने का ऐलान हुआ उसके मैके से सब लोग मेरे घर आ गए थे और शायद उसे दफनाने में जल्दी भी कर रहे थे। यही वजह थी कि वो आदमी उन सब के पीछे खड़ा था। उसने सभी के मुंह में पैसे लगाए होंगे। अब वो मेरी बीवी को पैसे कमाने का जरिया बना चुका था और मेरी बीवी पर इंतहा के जुल्म भी करता था। मेरी बीवी तो मुझसे नजर मिलाने के काबिल न रही थी, इसलिए वो उसकी सारी बातें मानती गई और डाल दल में फंसती चली गई। अब उसकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो चुकी थी। मैंने अपनी बीवी की सच्चाई जानने के बाद उसे धुतकारने की बजाय उसे हौसला दिया और कहा कि तुम इस बुराई से लड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। चाहे तुम्हारी कितनी ही तस्वीरें पूरी दुनिया क्यों ना देख ले, लेकिन तुम अब उसके हाथों रागमाल नहीं बनोगी। अब मैं उस आदमी को खुद भी देखूंगा कि ये कानून की गिरफ्त से कैसे बच सकता है। मैं अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके इस शख्स को कैफे किरदार तक पहुंचाने का इरादा कर चुका था। तभी मैंने अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जो लोग अपनी बीवी को इन लम्हों में अकेला छोड़ देते हैं वो बजाय खुद मर्द कहलाने के काबिल नहीं होते। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि औरत को कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक वो उसका महरम न बन जाए। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए विकिपीडिया टीवी को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।